Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the exercise chapter number 3 operating system. We had completed up to layer, but one of you had asked one question, what is the distributed operating system? I am explaining once again, then we'll take the next topic of this chapter, distributed. In a distributed operating system, the computers are connected, means a network is created. In distributed operating system, ढेर सारे कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है? अब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है में दे आर शेयरिंग their processes, their resources, their files, their I/O devices. अब what is the operating system? Operating system which manage and control all the devices. Now, if one file is present here, first they are sharing means if a user is there, it can use the processor at this device. It can use the I/O devices available here. It can store or retrieve file anyone on the network. Everything. Ab, just remember, means if a user is here, he want to use a file which is stored in the computer here. Now, this is the responsibility of operating system, that any unauthorized user cannot access the file on his disk and cannot manipulate the file. But a authorized user can access, can update, can share the files. Just example, you are a Facebook user, so you can access the account of your file, means your whatever the data you have stored on the Facebook, your picture, your messages and all, you can update, you can post, you can change, but no one else. So who will manage? If the person is authorized, the person can access the data. The distributed operating system. Operating system, the software which manage and control all the devices. All the devices means the hardware, hard disk, memory, processor and all. ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क पर अवेलेबल किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन, मीन्स यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम you can share the resources on the network. इस नेटवर्क पर अवेलेबल किसी भी फाइल, किसी भी प्रोसेसर, किसी भी I/O डिवाइस को आप यूज कर सके, शेयर कर सके. ठीक है, तो यूजिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम you can access, you can share the data, the devices, the processor on the network. So this is called the distributed operating system. नेटवर्क पर किसी फाइल को शेयर कराना है या हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, फाइल को कहीं और सेव करना है, कहीं और से मंगाना है विद फुल प्रोटेक्शन. मतलब अगर ऐसा होने लगे कि कोई भी यूजर किसी का भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, तो इट्स अ वेरी हैप्पी वन. आपने अपना डेटा किसी रिमोट साइट पर सेव किया और किसी और ने तो उसमें कुछ भी चेंज कर दिया, आपने कोई मैसेज पोस्ट किया, उस पर कुछ भी चेंज हो गया, तो दैट इज डजंट मीनिंग, यूज का कोई मतलब नहीं है. तो शेयर बट ओनली ऑथराइज्ड यूजर. सो चेक द ऑथेंटिसिटी, अवेलेबल द शेयरिंग रिसोर्सेज, ऑल द वर्किंग इज डन बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. Right? Now,
The कर्नल, हम लोगों ने लेयर पढ़ ली थी. लेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्क के बेस पर उसको लेयर्स में बांटा गया था. तो द लोएस्ट लेयर दैट इज द कर्नल. बेसिकली द कर्नल इज द core of the operating system which perform all the hardware dealing work. Hardware dealing means the processor, the memory, the hard disk, the IO devices. These all are the hardwares. So this is controlled by the kernel कि आप उस hardware device को कैसे. Kernel is also operating system is the software, right? So the kernel is also the part of the software which in that part the main hardware dealing work is involved. Here when the main hardware dealing with work is involved, we divide this hardware dealing work in basically 4 parts. Process management, memory management, IO management and file management. In the process management, main dealing with the process, and memory management, controlling your RAM, IO management, controlling your IO devices, and file management means controlling your file. Now first, process manage. We'll take one by one each part. Okay. Now process management. What is a process? Any program which is run by the processor is called the process. देखिए कोई भी प्रोग्राम जब आपके हार्ड डिस्क पर है तो वो प्रोग्राम कहलाएगा. When it come to the main memory to execute, जब आपको उसे रन कराना है तो उसे आप मेन मेमोरी में डालते हैं और जितनी देर वो रन होगा उतनी देर वो मेन मेमोरी में रहेगा. इस चीज को प्रोसेस बोलते हैं. उस समय जिस समय वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में रन होने के लिए आए, जिस समय वो रन हो रहा हो, जिस समय वो प्रोसेसर का वेट कर रहा हो, जिस समय उतनी देर उस प्रोग्राम को प्रोसेस बोलते हैं. अब प्रोसेस को कंट्रोल करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को करना क्या क्या होता है. ठीक है. पहला आई एम डिवाइडिंग. उसके बाद में आपका इन योर प्रोग्राम देयर इज इन 2 शॉर्ट वन. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. देन यू विल राइट बाय योर ओन. यू डोंट हैव टू समराइज मेमोराइज ऑल द थिंग्स. रटने की जरूरत नहीं. व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट बाय योर ओन. ओके. इन द प्रोसेस मैनेजमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम डू द फॉलोइंग टास्क. फर्स्ट, प्रोसेस creation. Processor allocation. Processor deallocation. Keep track of the process.
work in the process management section. Means process means running program is called the process. एक प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसके स्टार्ट से लेके एंड तक में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या काम करने पड़ते हैं. I am making a figure. Okay, this figure is not in your course, but when you know the figure, you will understand what is the process management. Yes. Now, this all are the process state. Keep track of the process. Basically, it's a process. Means process is in which state. So, process. This all are the process state. Means the process is in new, ready, running, suspended, and terminate state. Now, start. When the program is on the hard disk, that is the program, not the process. When you double click, आपको माझे MS Word रन कराना है, अपने MS Word पर डबल क्लिक किया. मीन्स अब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या वर्किंग स्टार्ट होती है, उसको हार्ड डिस्क से उठा कर मेन मेमोरी में डालना और उसके नाम से एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट करता है विच हैज़ द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस. दिस इज नाउ द program convert to the process and it is in newborn state. अब newborn state से ready state में कब जाता है? newborn state से ready state में तब जाता है when all the demand or fulfill, मतलब उसको रन होने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब की सब उसके पास है सिवाय प्रोसेसर के. मतलब अब वो एकदम तैयार है कि प्रोसेसर उसको रन कराए. तो दिस इज इन द रेडी स्टेट, मीन्स रेडी टू रन. नाउ अब ये आपको अब केवल एक प्रोग्राम तो रेडी स्टेट में है नहीं, मे बी मोर देन वन प्रोग्राम रेडी स्टेट में है और प्रोसेसर तो एक ही है. अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है, मान लीजिए देयर आर 4 प्रोग्राम्स. अब नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिसाइड विच वन टू रन ऑन द प्रोसेसर. मीन्स P1 रन होगा, P2 रन होगा, P3 रन होगा या P4 रन होगा. इट बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम. एक एल्गोरिदम होती है द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. मीन्स जो पहले आया वो पहले रन होगा. द नेक्स्ट एल्गोरिदम इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. मीन्स जो प्रोग्राम सबसे छोटा वाला है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. तो वॉट एवर द बेस्ड operating system decide one program and assign it to the processor. That is this processor allocation. 4 है, 4 में से एक को निकाला based on the algorithm, जिसे भी निकाला हो और उसको प्रोसेसर को असाइन कर दिया. अब जो प्रोग्राम प्रोसेसर में रन हो रहा है वो रनिंग स्टेट में है और बचे हुए सारे रेडी स्टेट में है. ठीक है. अब मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि अगर हम प्रोसेसर का टाइम सब पर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो
तो इसका टाइम पूरा हो गया तो इसको बाहर निकाल दिया, दूसरे को रन करा दिया। अब यहाँ पर ये रेडी स्टेट में है, कोई वजह नहीं है ये निकलने की कि क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया है तो बाहर निकल गया है, तो रनिंग से रेडी स्टेट में डालेंगे, मीन्स रेडी टू रन। दूसरा ये हो सकता है कि प्रोग्राम रन हो रहा हो, किसी चीज की डिमांड आ जाए, जैसे रन होते समय किसी इनपुट की डिमांड आ जाए या किसी इवेंट की डिमांड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप MS वर्ड चला रहे हैं, ठीक है, MS वर्ड पे आपने फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स खोला। अब आपने उसमें फाइल का नाम लिखा, डायरेक्टरी का नाम लिखा, सारी चीज़ें लिखी, पर जब तक आप ओपन बटन पर क्लिक नहीं करेंगे आपका प्रोग्राम वहीं पर रुका रहेगा, कोई भी दूसरा काम उस प्रोग्राम में नहीं होगा। सो इट इज़ वेटिंग टू क्लिक ऑन द ओपन बटन। हियर इवेंट नीड, उसे बटन के क्लिक की नीड है, बटन पे क्लिक का वो इंतज़ार कर रहा है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो वो प्रोग्राम प्रोसेसर में तो रहेगा नहीं, प्रोग्राम प्रोसेसर का तो वो टाइम वेस्ट ही करेगा। प्रोसेसर जितनी देर में इसका इवेंट पूरा होते में वो और दूसरों को रन करा दे। तो अगर किसी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट की डिमांड या इवेंट की डिमांड आती है तो उसको रनिंग से निकालकर सस्पेंडेड में डाल देते हैं कि जब तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो जाएगी फिर रन होगा, दूसरे को रन कराना शुरू कर देता है। तो व्हेन द प्रोग्राम इज सस्पेंडेड ड्यू टू IO डिमांड और इवेंट नीड, इट इज इन सस्पेंडेड स्टेट। ठीक है, अब सस्पेंडेड स्टेट में है, जिस भी वजह से बाहर हुआ हो, अगर वो वजह पूरी हो गई, मतलब बटन पे क्लिक हो गया या इनपुट आउटपुट मिल गया, तो वो फिर से वापस रेडी स्टेट में पहुंचता है। अब अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, मान लीजिए 10 लाइन का प्रोग्राम है, 10 लाइन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया, तो रनिंग से निकलकर टर्मिनेट मीन्स कंप्लीट स्टेट में जाता है। और मान लीजिए वो सस्पेंडेड स्टेट में है कि जिस भी वजह से बाहर हुआ वो वजह पूरी नहीं हुई, तो भी वो खाली प्रोसेस बन के तो उसको इनकम्प्लीट टर्मिनेट करते हैं, कहते हैं वो अबॉर्ट प्रोसेस। नाउ ये पूरी वर्किंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करने में रहता है। न्यू से रेडी स्टेट में डालना, रेडी में जितने प्रोग्राम है उनको एक एक करके प्रोसेसर असाइन करना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सस्पेंडेड स्टेट में डालना, जो पूरा हो गया उसको बाहर निकाल के दूसरे को असाइन करना, टर्मिनेट करना। ऐसी प्रॉब्लम जो सस्पेंडेड में था उसकी डिमांड फुलफिल हो गई तो उसको वापस रेडी स्टेट में डालना। ऑल द वर्किंग इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कम इन द प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्रिएशन मतलब नया प्रोग्राम क्रिएट, प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करना, मेमोरी अलोकेट करना, PCB क्रिएट करना, दैट इज द प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेसर अलोकेशन, प्रोसेसर का वेट कर रहा है, उसको प्रोसेसर अलोकेट किया। प्रोसेसर डी अलोकेशन, प्रॉब्लम कोई आ गई, वापस ले गया उसे प्रोसेसर, या कंप्लीट हो गया तो निकाल दिया। कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस, प्रोग्राम प्रोसेस किस स्टेट में है, उसको क्या चाहिए वो चीज़ देना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो फुलफिल करना। ऑल द वर्किंग कम इन द प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस डिलीशन का मतलब होता है क्रिएशन में आप उसे मेमोरी अलोकेट करते हैं, डिलीशन में उसे जो मेमोरी अलोकेट की थी वो मेमोरी आप उसे वापस देते हैं। ऑल द वर्किंग कम इन द प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, we'll take the next work in the next class. Okay, thank you.